student. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 5, balance of payment. It also includes 6 marks and this is your for lecture 1. Before this chapter we have completed money and banking and government budget and the economy. Both this chapter also include 6 mark each, which means after completing of this chapter we have completing the 18 marks from macroeconomics. Now today we are going to discuss the balance of payment. Let's start. Now today in this chapter we are going to cover up this following topic. Following topic, the first one we are going to discuss the introduction part, then balance of payment, what is balance of payment, then what is balance of trade, and different kind of component in balance of payment. Balance of payment is also known as BOP. In short form we can write BOP, and balance of trade is BOT. Now under component of balance of payment we are going to discuss the current account and capital account. Now let's start with the introduction part. Presentation of balance of payment. As you see in the picture, balance of payment means how can we are going to balance the payment, and basically this balance of payment measure the one country transaction in terms of other country transaction. जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमी इज रिलेटेड एज ए होल स्टडी अबाउट द टोटल एग्रीगेटिव या टोटल सेविंग, टोटल पॉपुलेशंस का बात करता है. तो जो भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, एक कंट्री का ट्रांजैक्शन दूसरे कंट्रीज के फॉर्म्स में बैलेंस है कि नहीं. जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होता है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफरेंट अकाउंट में. तो that's why I shown a figure. Now coming to the introduction part, basically we are going to discuss the first balance of trade. Now balance of trade, the balance of trade is the difference between the monetary value of export and import of output in an economy over a certain period. It is the relationship between nations import and export. A positive balance is known as the trade plus if it consists of exporting more than its import. A negative balance is referred to as a trade deficit or informally a trade gap. Now the first topic is balance of trade. Now basically balance of trade measure the difference between the export and import. Export and import means the value of export in terms of monetaries, means at what amount of money we can exactly export to the different countries, and what amount of value in terms of money we import from other country. The basically difference between the two terms, that is export and the value of export and the value of import, is termed as balance of trade. जैसे कि हम जब भी बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेजर करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा कि जो भी एक्सपोर्ट है आपका वैल्यू, जितना कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका इन टर्म्स ऑफ वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू में उसको मेजर्स करेंगे कि कितना करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया. अगर मान लीजिए कि आपने राइस एक्सपोर्ट किया तो कितने टन राइस एक्सपोर्ट किया, वो टन्स को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में हम काउंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू में, और वो एक्सपोर्ट का वैल्यू को और ट्रेड का जो इम्पोर्ट करेंगे वो दोनों के बीच का डिफरेंस को निकालेंगे. डिफरेंस पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. हमेशा एक कंट्री कब सरप्लस होगा, जब उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट कम होगा, तो वो ऑलरेडी सरप्लस ट्रेड कहते हैं उसको. हम क्या कहते हैं, ट्रेड सरप्लस. तो ट्रेड सरप्लस ईच एंड एवरी कंट्री ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, और उसको अचीव करने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अंडर द बैलेंस ऑफ ट्रेड में. अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आता है, समटाइम क्या होता है, जैसे कि अंडर डेवलप कंट्रीज लोग, अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे जितने अंडर डेवलप कंट्रीज है उसमें बेसिकली ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होता है, विच मीन्स इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इन इंडिया कोयल्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि जो कोयल का प्रोडक्शन है उसको अंडर डेवलप कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, लाइक जमैका, क्यूबा कंट्रीज़, केन्या, जिम्बाब्वे, ये सब को सप्लाई करते हैं. खुद के लिए यूएस से
कोयल का इंपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वो लोग को सप्लाई करने का जो वहाँ से रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो उसका अमाउंट, टोटल अमाउंट और जो हमने इंपोर्ट किया दोनों को माइनस करके देखेंगे। अगर वो सरप्लस है तो हम ट्रेड सरप्लस में काउंट करेंगे। अगर वो लॉसेस में, मीन्स लॉसेस कब होगा, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, दैट काउंट अंडर द ट्रेड डेफिसिट। इनफॉर्मली ए ट्रेड गैप कहते हैं इसे। नाउ मूविंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP account are an accounting record of all monetary transactions between a country and the rest of the world. These transactions include payment for the country's export and imports of goods, services, financial capital, financial transfer. The balance of payment account summarizes the international transaction for a specific period, usually a year, and a prepare in a single currency. जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये क्या कहता है कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। एक साल में जो भी हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है अपने कंट्रीज़ को लेके और बाकी कंट्रीज़ का बीच में, जैसे कि इंडिया है तो इंडिया किस किस के साथ ट्रेड रिलेशन रखता है, उस सारे कंट्रीज़ का ट्रेड रिलेशन ट्रांजेक्शन और अपने कंट्री का ट्रांजेक्शन एक साल में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है उसको वो मेजरमेंट करता है। इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन इट्स रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड नॉट ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, that is visible item, but it also include invisible item and capital transaction are also recorded under balance of payment। जो हम जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो हमेशा लोग क्या सोचते हैं कि गुड्स एंड सर्विस का ही होता है, लेकिन वो जब गुड्स एंड सर्विस जो दिखाई देता है उसको हम विजिबल आइटम में काउंट करते हैं और जो नहीं दिखाई देता है उसको इनविजिबल। ना क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर द इनविजिबल आइटम, जैसे कि जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, शिपिंग है, जैसे एयरवेज से किससे भेज रहे हैं वो सामान, वो हिडन है, वो उसको किसी को पता नहीं होता, उस पर भी पर्टिकुलर कुछ चार्जेस लगता है। आपने एक गुड्स को मान लीजिए 100 टन्स ऑफ राइस आपने किसी को एक्सपोर्ट किया, लेकिन उसको ले जाने का एक मीडियम होगा। व्हाट आर दिस मीडियम, मे बी वॉट एवर द मीडियम इट इज कम्स अंडर द इनविजिबल आइटम। नाउ बेसिकली बैलेंस ऑफ payment means a record of international transaction between residents of one country and the rest of the world. For definition purpose you can write this definition: a record of international transaction between residents of one country and the rest of the world. Now moving to next, what are the objective of this balance of payment? What are the objective? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव to represent the economic position of a country, whether its currency is rising or falling in its external value. मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To represent the economic position of a country, whether its currency is rising or falling in the external value. जो भी हमारा इकोनॉमिक पोजीशन है एक कंट्रीज़ का उसको वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का थ्रू, कि हाँ इंडिया क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या इंपोर्ट कर रहा है, वो चाहे आपका करेंसी का वैल्यू इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, लेकिन भी आप उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही कंपलसरी है। मूविंग टू नेक्स्ट, द जनरल रूल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। व्हाट आर द बेसिक जनरल रूल व्हिच इज कम्स अंडर द accounting? If a transaction earns foreign currency for the nation, it is a credit and is recorded as a plus item. Basically we know the two terms, that credit और debit। तो क्रेडिट कब होगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। डेबिट कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने से क्या होगा? आपको अपना करेंसी दूसरे कंट्री को देना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे कंट्री से करेंसी आपके यहाँ पे आएगा। तो हमेशा जब ट्रांजैक्शन होता है तो फॉरेन करेंसी फॉर द प्लस ऑफ ए नेशन, जैसे कि फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में आता है कोई भी फॉरेन करेंसी, तो वो प्लस पॉइंट कहा जाता है। जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में काउंट करते हैं तो जितना हो सके क्रेडिट होने के लिए
जितना क्रेडिट होगा उतना प्लस है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, और जितना डेबिट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये दो रूल्स को हमेशा फॉलो करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि क्रेडिट किससे आएगा आपका, एक्सपोर्ट से, डेबिट किससे होगा, इंपोर्ट से। और बेसिकली जब हम ये अकाउंटिंग का बात करते हैं तो उसमें आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हर कंट्री जरूरी नहीं कि एवरी टाइम वो बैलेंस उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस ही होगा, डेफिसिट भी हो सकता है। डेफिसिट मतलब उसके पास वो रिसोर्सेस नहीं है जो वो अपने कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर सकता है फुलफिल। तो सम टाइम क्या होता है कि वो अदर कंट्रीज से इसको इम्पोर्ट करते हैं हम लोग। नाउ moving to the component of balance of payment, these are the important topic from exam point of view. In exam point of view, the question may be asked what is balance of payment, or explain the component of balance of payment. Yeah, what are the different component of balance of payment? So basically you have note down the first component is current account, second one is capital account, and third one is official account. Now first the current account, we are going to discuss the current account component of balance of payment. Now what is current account? Balance of payment on current account refer to the inclusions of the three balance, namely merchandise balance, service balance, and unilateral transfer balance. In other words, it reflects the net flow of goods and services, and unilateral transfer gives the net value of the balance of visible trade and of invisible trade, and unilateral transfer defines the balance on current account, which means balance of payment of a current account is a statement of actual receipt and payment relating to export and imports of goods and services, and unilateral transfer during a given period of time. Now when we know the current account, then we have to know the its component कि करंट अकाउंट के अंदर कितने कंपोनेंट आते हैं। डेफिनेशन क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए करंट अकाउंट इज स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट है कि उसमें क्या होता है, एक्चुअल रिसिप्ट और एक पेमेंट का रिसिप्ट को शो करते हैं करंट अकाउंट में कि आपने रिसिप्ट कितना लिया कंट्रीज से और पेमेंट कितना किया कंट्रीज को, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए हो और या इंपोर्ट्स के लिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विस के लिए हो, या यूनिलेटरल ट्रांसफ़र के लिए हो। एक साल में आपने कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है उस पेमेंट का रिसीप्ट को शो करते हैं हम लोग किसमें, करंट अकाउंट में। जब इसमें शो करते हैं तो इसका कंपोनेंट आ जाता है कि कंपोनेंट में क्या होगा। तो कंपोनेंट देखिए हमने दो करके दिखाया, एक क्रेडिट एक डेबिट। तो क्रेडिट मीन्स क्या होगा कि वो हमारे पास आएगा, डेबिट मतलब हम उनको देंगे अदर कंट्रीज़ को। तो पहला जो है विजिबल आइटम में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट या सेल्स ऑफ ए गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विस है हम एक मर्चेंडाइज के थ्रू से अदर कंट्रीज़ को जो सेल करते हैं तो उससे हमारे कंट्रीज़ में क्या आएगा, मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगा कोई भी गुड्स एंड सर्विस के थ्रू से, तो वो क्रेडिट्स में आ जाएगा। दूसरा, अब इनविजिबल आइटम क्या होगा इसमें, इनविजिबल जिसमें दिखाई नहीं देता, जैसे ट्रांसफ़र एंड इंश्योरेंस सर्विस सोल्ड एब्रोड, जैसे कि हमारा कोई ट्रांसफ़र और या इंश्योरेंस एजेंसी है वो अपना सर्विसेज अदर कंट्रीज़ में भी सेल कर रहा है। जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस में आपका जैसे मान लीजिए कि एसबीआई का है, आईसीआई का है, बजाज अलायंस है, एचडीएफसी एर्गो है, बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर कोई भी चीज़ डिफरेंस फॉर्म में या एलआईसी अगर बाकी अदर कंट्रीज़ में भी सर्विस दे रही है तो उससे क्या आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो किस में डिपॉजिट करेगी, इंडियन करेंसी में। वहाँ से तो मान लीजिए डॉलर में हो या पॉन्ड्स में होगा या दिनार में होगा, डिफरेंट करेंसी फॉर्म होता है तो हर कंट्रीज़ का, जिसमें तो वो उसमें जब उसको एक्सचेंज करके हमारे इंडियन करेंसी में जमा करेंगे तो हमारा मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगा। देन डेबिट्स में क्या होगा कि मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वो आपके अकाउंट से क्या होगा, पैसा डेबिटेड हो जाएगा अदर कंट्रीज़ में। परचेस ऑफ गुड्स, कोई टेक्नोलॉजी खरीदते हैं या गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं तो वो आपका डेबिटेड हो जाएगा। उसी तरह इनविजिबल में ट्रांसफ़र एंड इंश्योरेंस सर्विस ब्रॉड फ्रॉम एब्रोड, अब कोई सर्विस हम बाहर से कुछ खरीदते हैं या सर्विस यूज़ करते हैं बाहर से, है कि नहीं, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका जो मॉनेटरी वैल्यू हो वो डेबिटेड होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकें कि इंडियन टूरिस्ट एक्सपेंडिचर आउटसाइड द कंट्री, मान लीजिए इंडिया से कोई घूमने के लिए फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहाँ क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो क्या है, तो घूमने गया ना, लेकिन एक्सपेंडिचर तो उसका दिखाई नहीं दे रहा, तो वो भी इनविजिबल आइटम में आ जाएंगे आपका। बेसिकली अगर हम करंट अकाउंट का कंपोनेंट का बात करें तो आपको याद रखना है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम होता है, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। एक्सपोर्ट
एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम मीन्स क्या होगा आपका, करंट अकाउंट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विजिबल आइटम ऑफ गुड्स लाइक व्हीट राइस मशीन, जो भी चीज़ आप गुड्स भेज रहे हैं वो आपका विजिबल आइटम में आएगा, चाहे वो एक्सपोर्ट करे या इम्पोर्ट करे, पहला पॉइंट। उसी को हमने यहाँ सेपरेट करके दिखाया। दूसरा है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम, जैसे कि इनविजिबल क्या होगा, जैसे कि सर्विसेज लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सब इनविजिबल पे आता है। देन थर्ड इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। Unilateral transfer, these transfer between residents and non-resident, this can be private as well as public, which include gift, donation, etc. Official transfer including donation, gift, grants in cash, etc. यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में बेसिकली क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो भी ट्रांसफ़र होगा इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे पब्लिक, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से, चाहे वो गिफ्ट दे रहा हो किसी को या डोनेशन दे रहा हो ऑफिशियली या प्राइवेटली, चाहे कैश भी दे रहा हो, तो ये जो भी ट्रांजेक्शन होगा, दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन आर कम्स अंडर द यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। अंडर दिस करंट अकाउंट वन मोर component left, that is income received and payment from and to abroad. Now moving to next, capital account. Now we are going to discuss about the capital account. Capital account of a country consists of its transaction in financial asset in the form of short term and long term lending and borrowing. अब करेंट अकाउंट में हमने डिस्कस किया कि उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा वो आते हैं, उसके बाद इंपोर्ट्स यूनिलैटरल ट्रांसफर। लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन एक चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो या बोरोइंग, आप किसी एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में जब भी देते हैं या लेते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट में ही हो या इंपोर्ट्स फॉर्म में हो, तो वो आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर में काउंट होता है। इट रिकॉर्ड द कैपिटल ट्रांजेक्शन सच एज लोन and investment between one countries and the rest of the world, which causes a change in the asset or liabilities status of the residents of a country or its government. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई कंट्रीज FDI के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो क्या हो गया, हमारा कंट्रीज़ का एसेट क्रिएट होगा, है कि नहीं, एसेट क्रिएट होगा और वो स्टेटस भी गवर्नमेंट का, रेसिडेंस ऑफ द कंट्रीज का स्टेटस भी इंक्रीज होता है इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज़ के कंपेयर में। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म लोन भी लेते हैं या किसी को प्रोवाइड भी करते हैं लोन, या आप डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं लोन, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, या बोरोइंग भी कर सकते हैं। अगर बोरोइंग करेंगे तो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से करेंगे, जैसे कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेसिकली द मेन कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट आर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में जैसे हमने बात किया कि FDI के थ्रू से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बोरोइंग में चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म्स हो, वो डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट, जैसे परचेस ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आपने लिया किसी कंट्रीज से, किसी कंपनी का, फॉरेन कंट्रीज़ का शेयर खरीदा उसको इन्वेस्ट करने के लिए। कैश बैलेंस हेल्ड विद द फॉरेन कंट्री फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट में क्या होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बोर्ड, रियल एस्टेट, प्लांट, बिल्डिंग एक्सेट्रा। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट होगा वो FDI में काउंट हो जाएगा, कि FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी कंट्रीज बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा नहीं ऑब्वियसली। मान लीजिए कि रिलायंस का कोई जियो में किसी ने इन्वेस्ट करना चाहा फॉरेन कंट्री से, तो वो क्या शॉर्ट टर्म के लिए तो होगा नहीं, लॉन्ग टर्म्स के लिए होगा। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू से ही हो सकता है, चाहे वो शेयर में हो, बॉन्ड्स में हो, रियल इस्टेट में हो, प्लांट्स हो, बिल्डिंग एक्सेट्रा। लाइक कैश बैलेंस हेल्ड विद द फॉरेन कंट्रीज फॉर अ टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर। और दूसरा है कि कैश बैलेंस, जो भी फॉरेन कंट्री से उसके पास कैश बैलेंस जो भी है वो 1 साल से अगर ज़्यादा हो, तो वो भी किस में काउंट होगा, आपका कैपिटल अकाउंट में। नाउ सेम थिंग्स आई डिस्कस in terms of credit and debit of capital account. And the first one is the foreign long terms investment in home country. मान लीजिए कोई भी फॉरेन कंट्री से लोग आके इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो किस में काउंट होगा, आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री से पैसा मनी फ्लो करके कहाँ आ रहा है, हमारे कंट्रीज़ में। तो किस फॉर्म में आ सकता है ये,
आपका आने का किस फॉर्म में हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन होम कंट्रीज। एक कोई भी फॉरेन कंट्री अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई प्लान कोई बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है इंडिया में, तो उसके थ्रू से भी हो सकता है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक सिक्योरिटी, जैसे डोमेस्टिक कोई आरबीआई का कोई बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज को खरीद रहा है या कोई कंपनी का शेयर्स को खरीद रहा है, तो उसमें फॉरेन कंट्रीज कोई अगर कोई सेल्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ बॉन्ड्स को परचेस कर रहा है तो वो क्रेडिट में आ सकता है। देन थर्ड वन इज फॉरेन कॉर्पोरेट लोन टू द होम कंट्रीज। अब समटाइम क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज है अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम लोन लेते हैं फ्रॉम डेवलप कंट्रीज से, है कि नहीं। जैसे होम कंट्रीज इंडिया कैन टेकन अ लोन फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट मीन्स यूएस बैंक से, तो वो भी पॉसिबल ही है। या तो उसका अपोजिट कर दिया, होम कंट्री से फॉरेन कंट्री लेगा तो इसके अंदर क्रेडिट के अंदर आ सकता है, जैसे यूएस ने इंडिया से लोन लिया। ओके, अनदर वन फॉरेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एट इन होम कंट्री। पहला हमने लॉन्ग टर्म का बात किया, अब शॉर्ट टर्म का बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि परचेस ऑफ शेयर ऑफ फॉरेनर, शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर लेस देन 1 ईयर, जो भी 1 ईयर से अगर कम का पीरियड का होगा वो हम शॉर्ट टर्म में काउंट करेंगे। नाउ ऑन द अदर पार्ट दैट इज डेबिटेड पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। अब जस्ट इसका अपोजिट करिए, क्रेडिट पोर्शन का अपोजिट कर दीजिए। जैसे कि क्रेडिट पोर्शन में क्या था कि फॉरेन कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब डेबिट में क्या हुआ कि अगर इंडिया अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेट इज डेबिटेड पार्ट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में, इन्वेस्टमेंट टू फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट लोन टू फॉरेन कंट्रीज में, तो वो डेबिटेड में चला जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट, एक टर्म्स को याद रखिए क्रेडिट और, तो दूसरा आपको ऑब्वियसली लर्न करने के लिए प्रोसेस में ईजी होगा। तो बेसिकली we are discussing about the balance of payment and what is current account, capital account, its component, and this lead to the difference. One question created from the both that is current account and capital account. Differentiate between the capital account एंड करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो यू कैन जस्ट फर्स्ट आपको उसका नेचर को डिस्टिंग्विश डिफाइन करना, देन कॉन्सेप्ट को, देन अबाउट फार्मूला। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफाइन कर सकते हैं कि दिस आर द ट्रांजेक्शन व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एसेट और लाइबिलिटी पोजिशन ऑफ द कंट्री। करंट अकाउंट का हम बात करें कि दिस आर द ट्रांजेक्शन व्हिच डू नॉट अफेक्ट द एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंट्री। ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट में क्या है, दिस आर द ट्रांजेक्शन व्हिच अफेक्ट एसेट और लाइबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंट्री। ये नेचर में आ गया। देन कॉन्सेप्ट में क्या होगा, इट्स फ्लो कॉन्सेप्ट। करंट अकाउंट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट, ऑन द अदर हैंड कैपिटल अकाउंट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। वेन एवर वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला फॉर current account is equal to the export and import of visible item and invisible item plus unilateral transaction plus income received and paid to abroad। ये तीनों को अगर आप सम करिए तो you will get the component of या value of current account means export and imports of visible item को प्लस करिए, unilateral transaction को प्लस करिए, प्लस income received and paid टू फॉरेन और एब्रोड से, ये तीनों को प्लस करने से आपको करंट अकाउंट का कंपोनेंट का वैल्यू पता चलेगा। अदर हैंड कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, बोरोइंग एंड लैंडिंग फ्रॉम एब्रोड टू एब्रोड प्लस इन्वेस्टमेंट टू फ्रॉम एब्रोड एंड चेंज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये 3 कंपोनेंट को अगर आप प्लस करते हैं तो यू विल बी गेट द कैपिटल अकाउंट। नाउ इफ someone will going to ask what is the formula for balance of trade, that the formula for balance of trade will be the value of export minus value of import। ये चीज़ आपको याद रखना है। now basically one topic I have left to discuss in this chapter, that is the structure of current account. What kind of structure we have in the current account? Structure in current account and capital account. The structure of current account are as follow. All export of goods and services are recorded as positive item.
जो हमने एक चार्ट बना के आपको दिखाया था, यही चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्रेडिट और डेबिट को इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स के फॉर्म में। अगर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, देन यू आर गोइंग टू डिस्कस whatever I am saying right now. Now the first point you have going to write, that is all export goods and services are recorded as positive item, that is credit side हो जाता है हमारा. All imports of goods and services are recorded negative item, that is debited side. Receipt of unilateral transfer are recorded as positive item, that is credit side. And payment of unilateral transfer are recorded as negative side, that is debited side. In the same manner, we are going to discuss the structure of capital account. The first point will be all capital transaction causing flow of foreign currency into the country are recorded as positive item, that is credited side. जैसे कि फ्लो ऑफ, जो भी फ्लो होगा ये आपका, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन्स हो, या परचेस ऑफ शेयर्स फॉरेन हो, या शॉर्ट टर्म्स लोन, इस ऑल थिंग्स इंक्लूडेड ऑल कैपिटल, मीन्स ऑल कैपिटल ट्रांजेक्शन कॉजिंग फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू आवर कंट्री, मीन्स इसी के वजह से हमारे कंट्रीज में जो पैसा आएगा, डेट्स कम अंडर द पॉजिटिव आइटम, और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्रेडिट साइड को हम बात करते हैं. ऑन द अदर हैंड, all capital transaction causing flowing or flow of foreign exchange out of the country are recorded as negative side, that is debited side. So with this we are going to conclude at today lecture. With this today topic is finished. In next video we are going to discuss further which topic I am going to discuss in the next video. For today, thank you so much, and please complete your homework which I have given in the last video. And you have any doubt and queries, please ask in the respective WhatsApp group made by our school. Please stay home and stay safe. Thank you.